السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سیر علماء کرام میں آپ کا استقبال ہے اور یہ نمبر ہے سیر علماء کرام کا 108واں نمبر، اور آج کی اس ویڈیو میں ہم معلوم کرتے ہیں امام ثعلبی رحمہ اللہ کے بارے میں مختصر سی زندگی ان کی مختصر سے وقت میں۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ، ان کی کنیت ابو اسحاق ہے، احمد بن ابراہیم ثعلبی نیساپوری شافعی مقری، یہ جو ہے مکمل نام ہے لقبوں کے ساتھ۔ یہ اپنی تفسیر سے مشہور ہیں اور وہ تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے۔ اس تفسیر کا اصل نام الکشف والبیان فی تفسیر القرآن ہے، لیکن مشہور ہے تو تفسیر ثعلبی کے نام سے مشہور ہے۔ ان کو ثعلبی بھی کہا جاتا ہے اور ثعالبی بھی کہا جاتا ہے، یہ ان کا لقب ہے۔ ان کی تاریخ ولادت اور جائے ولادت معلوم نہ ہو سکا۔ آپ بچپن ہی سے علم کو حاصل کرنے لگے تھے اور بچپن ہی سے علم کے شوقین تھے، علماء کے پاس جایا کرتے تھے۔ تفسیر کے شروع میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے کس طرح بچپن ہی سے علم کو حاصل کرنا شروع کیا تھا۔ اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ بچپن ہی سے علم کو حاصل کرنے میں لگ گئے تھے۔ آپ کو استاذ التفسیر بھی کہا جاتا ہے، استاذ التفسیر یعنی تفسیر کے استاد۔ اور جب استاد صرف استاد کہیں پر لکھا ہوا آپ کو ملے تو آپ تحقیق کر لیں، لیکن اکثر بتایا جاتا ہے کہ اکثر جگہ پر اشارہ جو ہے انہی کی طرف ہوتا ہے، استاد جو کہا جاتا ہے انہی کو کہا جاتا ہے۔ یاقوت الحموی معجم الادباء میں لکھتے ہیں کہ ابو اسحاق ثعلبی مقری، مفسر، واعظ، ادیب، فقہ، حافظ، علماء تفسیر، علماء لغت اور علماء تاریخ میں سے ہیں۔ بچپن ہی سے علم اور علماء کے شوقین تھے اور علم تفسیر میں خوب محنت کیے تھے، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت دی۔ اہل بدع مفسرین اور اہل حق مفسرین کے درمیان فرق کو پہچانا۔ مفسرین میں بعض اسانید کو ختم کر دیتے تھے اور بعض روایت کو صرف نقل کرتے تھے۔ نقد اور درایت کی کمی ان کے اندر موجود تھی، لہٰذا انہوں نے ایک جامع اور مہذب کتاب کو لکھنے کی ضرورت محسوس کی اور انہوں نے اپنی کتاب کو لکھا۔ آپ کے اساتذہ کا اگر ہم یہاں آپ کے اساتذہ کی بات کریں تو آپ کے اساتذہ میں ابو طاہر محمد بن فضل بن خزیمہ، ابو محمد المخلدی یا المخلدی، ابو بکر ابن ہانی، ابو بکر ابن مہران، یہ جو ہے آپ کے اساتذہ میں چند نام آتے ہیں۔ آپ کے تلامذہ میں ابو الحسن الواحدی، شریحی، ابو معشر الطبری، فراخ رادی، شیرازی، یہ آپ کے تلامذہ میں آتے ہیں۔ ثعلبی متقدمین میں سے ہیں اور قدیم مفسرین میں سے ایک ہیں۔ ان کی تفسیر ایک اہم مصدر کے لحاظ سے مانی جاتی ہے اور ان سے تفسیر لینے کے لیے طلبہ مختلف جگہوں سے آیا کرتے تھے۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کے متعلق کہ یہ امام ہیں، حافظ ہیں، علامہ، شیخ التفسیر ہیں، زبردست علماء میں سے ہیں۔ وفیات الاعیان میں ان کے متعلق یوں مذکور ہے کہ مشہور مفسر ہیں، اپنے زمانے میں تفسیر کے اعتبار سے یکتا تھے۔ انہوں نے تفسیر کبیر کی تصنیف کی ہے اور ان کی قصص الانبیاء میں کتاب العرائس نام کی ایک کتاب موجود ہے۔
तबक़ात शाफ़िय्या नामी किताब में इमाम सुबकी रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि वो इल्म क़ुरान में अपने ज़माने में वहीद थे और इनकी तफसीर, इनकी एक किताब है क़िसस अल-अंबिया में किताबुल अराइस। अब्दुल गाफिर बिन इस्माइल अल फ़ारसी जो तारीख़ निसापुर नामी किताब के मुअल्लिफ़ हैं, वो फरमाते हैं कि वो सही नक़ल करते हैं और सिक़ा हैं। तबक़ात शाफ़िय्या में असनवी फरमाते हैं कि इब्नुस सलाह और इमाम नववी रहमहुल्लाह ने आपको फ़ुक़हाए शाफ़िय्या में शुमार किया है और वो लुग़त और फ़िक़्ह के इमाम थे। इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सालबी अच्छे थे और साहिब दीन थे। वो रात में लकड़ियों को चुनने वाले की तरह थे, यानी कुतुब तफसीर से सही, ज़ईफ़ और मौजू जमा कर लेते थे। ये असल में किनाया है रात में लकड़ियाँ जमा करना, यानी बग़ैर तहक़ीक़ किए, बग़ैर जो है कुछ किए चीज़ों को जमा करना, उसकी तरफ जो है ये इशारा है। इसी तरह उनसे जो है एक मरतबा पूछा गया, तफासिर के मुतालिक़ पूछा गया उनसे, तो उन्होंने वाहिदी के मुतालिक़ बात करते हुए कहा कि वाहिदी सालबी के शागिर्द हैं और वो सालबी से ज़्यादा अरबी में महारत रखते थे, लेकिन सालबी में एक ख़ास बात ये थी, इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सालबी में एक ख़ास बात ये थी कि वो बिदआत से सालिम थे। दूसरों की तक़लीद करते हुए बाज़ चीज़ों को ज़िक्र कर दिए हैं, अलग बात है, लेकिन वो बिदआत से दूर थे। उनकी तफसीर और वाहिदी की तफसीर में बाज़ फ़वाइद हैं, लेकिन बातिल चीज़ें भी मौजूद हैं। इस तरह अब्दुल गफ़्फ़ार बिन इस्माइल की ये बात जो सालबी के मुतालिक़ वो फरमाते हैं कि वो सहीहुन नक़ल थे, गलत मालूम होती है, क्योंकि दीगर और भी उलमा ने इनको यानी इमाम सालबी रहमहुल्लाह को गैर सिक़ह कहा है, जैसा कि इब्न तैमिया का कौल मैंने बयान किया। और इसी तरह कत्तानी फरमाते हैं, जो उनकी किताब अर्रिसाला अल-मुस्ततरफ़ा में मौजूद है, वाहिदी के मुतालिक़ बात करते हुए वो भी फरमाते हैं कि वाहिदी को और उनके शेख सालबी को हदीस में महारत नहीं थी। दोनों की तफसीरों में बातिल अहादीस और मौजू क़िस्से मौजूद हैं। अत-तफ़सीर वल मुफ़स्सिरून में डॉक्टर मोहम्मद ज़हबी फरमाते हैं कि सालबी हकीकत में हदीस का इल्म कम ही रखते हैं। उन्होंने शिया की अहादीस को अपनी तफसीर में रखा है जो अली और अहले बैत के मुतालिक़ हैं, और ऐसी हदीसें हैं वो जिनके मुतालिक़ उलमा ये कहते हैं कि ये मौजू हैं, उनको उन्होंने अपनी तफसीर में रखा है। और उलमा ने ऐसी रिवायतों को रिवायत करने से मना किया है, वो तफसीरें उनकी किताब में मौजूद हैं। इमाम सालबी रहमहुल्लाह की अगर हम तसनीफ़ात की बात करें तो आपकी मशहूर तसनीफ़ात में किताब अल-अराइस है, फ़ी क़िसस अल-अंबिया, क़िसस अंबिया में एक किताब है। इसी तरह क़त्ला अल-क़ुरआन एक किताब है आपकी। इसी तरह अद-दुर्रह अल-फ़ाख़िरा फ़िल अम्साल अस-साइरा, ये भी आपकी एक किताब है। और आपकी मशहूर तफ़सीर अल-कश्फ़ वल बयान अन तफ़सीर अल-क़ुरआन। अब ये इनकी तफसीर के मुतालिक़ चंद बातें करते हैं। इनकी तफसीर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। क्यों बहुत ज़्यादा है इनकी तफसीर की अहमियत? चंद नुकात से हम मालूम करते हैं। पहला नुक्ता ये कि इन्होंने अपनी तफसीर में असानीद बयान किए हैं, जिससे कौल और काइल की सेहत का अंदाज़ा जो हो जाता है, और मुतारिज़ अक़वाल में बआसानी तरजीह दे सकते हैं कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। मरफू और मौकूफ़ रिवायतें आपकी तफसीर में मौजूद हैं। नंबर 2, दूसरा नुक्ता, इस तफसीर के मसादिर बाज़ वो किताबें हैं जो मखतूत हैं या मफ़क़ूद हैं। इस तरह इस किताब की अहमियत बढ़ जाती है। नंबर 3, तीसरा नुक्ता, कदीम तफसीरों में से ये एक तफसीर है, यानी मशहूर जो तफसीरें हैं उनमें सबसे कदीम तफसीर आपकी ये तफसीर है। नंबर 4, चौथा नुक्ता, इसकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी कर सकते हैं कि इस तफसीर पर उलमा ने तवज्जह दिया है
कैसे तवज्जह दिया है उलमा ने, यानी बाज़ उलमा ने इसको बाकायदा मुख्तसर, यानी इसका जो है मुख्तसर किए हैं, बाज़ उलमा इसको जो है मुख्तसर किए हैं, जैसा कि तफसीर बग़वी मालिमुत तंज़ील इसी की तफसीर की जो है मुख्तसर है। इसी तरह इब्न अबी रंदक़ा इन्होंने भी जो है इख्तिसार किया है। इसी तरह बहज़ाद अबू मोहम्मद बिन अली भी इस तफसीर को मुख्तसर किए हैं। दूसरी बात ये कि इस किताब को सुनने के लिए लोग जो है बहुत दूर से आया करते थे, जैसा कि अबू साद अब्दुल करीम समानी, अहमद बिन यूसुफ़ तालक़ानी, अबुल हसन अली बिन सुलेमान अल मुरादी, ये 3 वो नाम हैं जो इस किताब को सुनने के लिए, इस तफसीर को सुनने के लिए रिहलत करके बाकायदा आए थे। इसी तरह इस किताब पर हाशिए भी बहुत ज़्यादा लिखे गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, इस किताब पर हाशिए भी लिखे गए हैं, जैसा कि अब्दुल कादिर बिन अबुल कासिम बिन मोहम्मद बिन इदरीस लिखे हैं हाशिया इस किताब पर, इस तफसीर पर। इसी तरह इस किताब के साथ दूसरी किताब को भी जमा किया गया है, जैसा कि इब्नुल असीर रहमहुल्लाह ने जमा किया है कि अल इंसाफ़ फ़िल जमई बैन अल कश्फ़ी वल कश्शाफ़ तफसीर अस्सालबी व ज़मख़शरी, ये जमा किया गया है तफसीर कश्शाफ़ और तफसीर कश्फ़ जो इनकी तफसीर है। इसी तरह इस किताब पर तनक़ीद भी किया गया है, जैसे अबुल फ़ज़ाइल बदरुद्दीन अर्राज़ी ने मबाहिस तफसीर में इस किताब पर तनक़ीद किए हैं और इनसे नक़ल दूसरे मुफस्सिरीन भी करते हैं। ये तो खैर तफसीर है तो दीगर मुफस्सिरीन से नक़ल किया जाता है, ये तो आम बात है, लेकिन ये बात, एक ख़ास बात यहाँ पर यह है कि दीगर किताबों में भी, ख़ास किताबों में दीगर बड़े बड़े अइम्मा ने जो है आपके अक़वाल को बाकायदा अपनी किताबों में नक़ल किए हैं, जैसा कि इमाम नववी रहमहुल्लाह तहज़ीबुल अस्माई वल लुग़ात में नक़ल किए हैं, इब्न क़ुदामा रहमहुल्लाह अत-तव्वाबीन किताब में नक़ल किए हैं, इब्न हजर रहमहुल्लाह तलख़ीसुल हबीर में नक़ल किए हैं, अबू शामा रहमहुल्लाह अल मुर्शिद अल वजीज़ में नक़ल किए हैं, और इसी तरह ज़ैलई जो है नसबुर रायह में नक़ल किए हैं, और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमूउल फतावा में नक़ल किए हैं। अब आइए इस तफसीर का मनहज क्या है उसको जो है मालूम करते हैं। पहले ये सूरह का नाम लिखते हैं, सूरह का नाम बयान करते हैं और कहाँ ये आयतें नाजिल हुई, कहाँ ये सूरत नाजिल हुई उसको बयान करते हैं। फिर आयात, कलिमात और हुरूफ की तादाद बयान करते हैं। फिर उसके बाद सूरह की फ़जीलत में जो अहादीस मौजूद हैं उसको बयान करते हैं, जो आसार मौजूद हैं उसको बयान करते हैं। फिर अलग अलग आयतों की तफसीर करते हैं, और अगर इस तरह के माने रखने वाले और भी आयतें हैं तो वहाँ वो भी ज़िक्र कर देते हैं। उसके बाद अक़वाल सहाबा, ताबाईन सनद के साथ या बग़ैर सनद के भी ज़िक्र करते हैं। क़िराअत हैं तो क़िराअत को बयान करते हैं, शाज़ क़िराअत को भी बयान करते हैं। नहवी मसाइल पर बहस करते हैं और उसमें अच्छी तरह बहस करते हैं। लुग़वी और उसूली तौर पर कलिमात की तशरीह करते हैं। शेर से इस्तिशहाद करते हैं। इसराइलियात बयान करते हैं, लेकिन नक़द और उस पर जो है कोई बहस नहीं करते। इनकी तफसीर की जो तबाअत है वो तहक़ीक़ तो किए हैं, करने वालों ने किया है, लेकिन बताते हैं कि वो तहक़ीक़ जो है ऐसा किए हैं कि जिसको जो है तहक़ीक़ किए हैं ये हम नहीं कह सकते। यानी बहुत सी बातें जो है गलत सलत बातें शामिल कर दी गई हैं, और एक बात कहीं पर भी नक़ल करते हैं, फिर उसकी जो है एक और कापी जो है एक दूसरे का नक़ल करते हैं। यानी जो तबाअत है उसमें अच्छे अंदाज से तहक़ीक़ नहीं की गई है, ख़ुलासा अगर कहा जाए तो। लिहाजा इस तफसीर को पढ़ना चाहते हैं तो मुतनब्बा होकर पढ़ें कि कहीं जो है इसमें कोई गलत बात ना हम ले लें। ये जो है तंबीह के साथ अगर हम पढ़ेंगे तो जो उसमें अच्छी बातें हम उनको ले सकते हैं, और जो गलत हैं उनको हम गलत मान सकते हैं, जान सकते हैं, दूसरों को बता सकते हैं। तो मुतनब्बा होकर जो है पढ़ने की ज़रूरत है। बस ये चंद बातें हैं। आखिरी में ये बात कि आप 427 हिजरी में वफ़ात पाए, इन्ना लिल्लाहि
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔